क्या? तो कभी लोग पीछे रह गए।
3 तारीख Good afternoon, guys. Can you hear me? Okay. Yes. Okay. So you guys can hear me, right? And the screen is visible. Okay. Fine. So in the last lecture, we have done potential, right? We have written the equation in terms of dipole moment, correct? So today we are going to go to the next topic, where we are going to calculate the electrostatic potential at a point due to certain number of charges. Okay, everybody got it? What we are going to do today? Yes. Okay, so the name of the topic is I think okay. So what? Electrostatic potential. Electrostatic potential due to system of charges. Okay. अच्छा, मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या लास्ट लेक्चर में? डिड आई गिव एनीथिंग एज अ होमवर्क? हाँ, मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या? ओके, ठीक है, फाइन। मैंने पढ़ने के लिए बोला था। आई थिंक जो डेरिवेशन है हमारा, ये डेरिवेशन आई हैव आस्क्ड यू टू रीड। आई होप यू गाइस हैव read it. Okay, so let's say there is a point P. Okay, there's a point P, and around this point P, surrounding this point P, there are charges. Okay, there's a charge over here, let's say Q1. There's a charge over here, let's say Q2. There's a charge over here, let's say Q3, and similarly, and you have a charge over here which is Q1, Qn. Now these charges are at a distance of R1. This charge is at a distance of R2. This charge is at a distance of R3, and this charge is at a distance of R4. Okay, everybody understood up till here? Everybody got it? Okay, so now I'm allowing you to unmute yourself, and now someone tell me what is the formula of potential? What is the formula of potential? मैंने बताया था last lecture में. What is the formula of potential? Those who know, they can unmute themselves and tell me the answer. आता है किसी को फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल? नहीं आस्था, दैट इज डाइपोल मोमेंट. Q by 4 pi epsilon naught r. 1 upon 4 pi E naught into 2 upon R square. 2 upon r square कि q upon r square?
First of all, it's not r square. R square, अगर if you put r square, then it becomes क्या कहते हैं, electric field. I need a potential. So the formula of potential is V equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R. याद है? Okay. This is the formula of potential. Clear, everyone? Okay. So now we are going to calculate the potential at point P. So the potential at point P due to n number of charges is V. Okay, where V is the total potential. V क्या है मेरा? Total potential. और ये जो total potential होगा, ये basically क्या होगा? This will be basically the sum of the individual potential. V1, V2 plus V3 plus dash 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 plus Vn. समझ में आ गया? ये लाइन क्लियर हुआ क्या? Everybody understood this point? Anyone has a doubt? Ikra, you are sending the message to everyone. Okay, send it to me. Okay, anyone has a doubt? Everyone is clear, right? Okay, so now what we are going to do is we are going to write therefore V equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R1 plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 upon R2 plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q3 upon R3 plus dash 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 1 upon 4 pi epsilon naught Qn upon Rn. क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया क्या? Therefore, अब देखो यहाँ पे 1 upon 4 pi epsilon naught कॉमन है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ. Therefore V will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R1 plus Q2 upon R2 plus Q3 upon R3 plus dot 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 Qn upon Rn. Okay. Now this can be further written as V equals to 1 upon 4 pi epsilon naught summation of I, which is equal to 1 to n Qi upon Ri. ये एकदम जनरल फॉर्म है. ओके ओके, अंडरस्टूड? समझ में आया? किसी को डाउट है इसके अंदर? Does anyone has a doubt? If they have a doubt, they can unmute themselves and ask. Otherwise, write the question in the chat box. Do let me know if anyone has a doubt. Yes, I'm waiting for the reply. No one has a doubt? Okay, ठीक है. So now do one thing. Let's
to solve one problem. I'll give you the it's a very simple problem. Okay. I'll tell you the question. What you have to do is find out the potential. Okay. Write down the question. Two charges. Write down the question. Two charges. And don't make me repeat because I'm giving this question like without reading from anywhere. Okay. So write down the question carefully. Two charges of 5 coulomb each of 5 coulomb each are are separated are separated by a distance of 3 centimeter and 4 centimeter from origin. Calculate the potential due to these charges at point. Calculate the potential due to these charges at point of origin. Okay, everyone has written the question. क्वेश्चन लिख लिया? सही, म्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. हाँ, everyone have written the question ना? Yes. Okay, चलो start doing it then. Has anyone got the answer? You know what formula you have to use ना? अभी जो हमने formula use किया है ना, ये सुपर ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस वाला, V will be equal to, यहाँ पे क्या हो जाएगा? V will be equal to V1 plus V2. अच्छा, does anyone know what is the value of 1/4 pi epsilon naught? किसी को पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? हाँ सही बताओ कितनी होती है? हाँ, what is the value of 1/4? 9 into 10 raised to 9. Correct, 9 into 10 to power 9. Okay, so here what you have to say is the total potential at origin V will be equal to the individual potential, that is V is equals to V1 plus V2. Okay, V is equals to V1 plus V2. Okay, and then start solving it. Like 5 coulomb is your charges and distance is 3 centimeters and 4 centimeters. Don't forget to convert centimeter into meter. Okay, don't forget to convert centimeter into meter. Got it? Should I do क्या? Or you guys can do it? कर सकते हो आप लोग ना, कि मैं करूं? सिंपल क्वेश्चन है. आंसर आया? चलो मैं कर देता हूँ, टाइम हो गया है. ओके, सी सो चार्जेस क्या है मेरा? Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 5 कूलम, R1 is 3 centimeters and R2 is 4 centimeters.
ओके, एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो R2 here becomes 4 centimeters, that is this becomes 0.03 meters, this becomes 0.04 meters. Okay, now what we have to find out is a v कितना है. So solution, ओके सॉल्यूशन के पहले देखो, आपको फॉर्म एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आता है तो लिखना कैसे है. पहले आपको लिखना है गिवन, ये आपका गिवन है, ठीक है. गिवन के हाफ मार्क्स होते हैं. ओके, देन यू हैव टू राइट डाउन. ओके, दही है. ओके, फॉर्मूला, फॉर्मूला ऐसा क्या आएगा, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r. इसका आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, ठीक है. ये फॉर्मूला है, हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, v विल बी इक्वल टू, फिर सॉल्यूशन लिखो, सॉरी, ठीक है. सॉल्यूशन आएगा v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2, ठीक है. तो v1 क्या होगा, v1 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन r1 which is equals to 9 into 10 to the power 9, 10 to the power 9 into 5 upon 0.03. v2 क्या रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 upon r2 equals to 9 into 10 to the power 9 into 5 upon 0.04. कितना आया इसको सॉल्व करने पे, जरा बता दो मुझे. आंसर कितना आया इसको सॉल्व करने पे, v1 कितना है और v2 कितना है, बता दो. Therefore v is equals to क्या है, इसका आंसर बता दो कितना आया v1 का. v1 कितना आया, 1125 into 10 raised to 9. v1 पक्का. v1 एक्चुअली v1 आता है कितना, देखो v1 आता है 15 into 10 to the power 11 आया है v1, प्लस चेक कर लो आता है क्या, कैलकुलेशन करो. 15 into 10 to the power 11, v2 कितना आएगा, ओके ठीक है. सो कितना है, 11.25 into 10 to the power 11. ओके, सो इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 11.25 प्लस 15 करेंगे तो कितना होगा, 26.25. ठीक है. ओके, से ऊपर का सॉल्यूशन कितने मार्क्स का, 1.5 मार्क्स. और ये आखिरी का जो हाफ मार्क्स है ये यूनिट के लिए है, ठीक है. तो ये आपका 3 मार्क्स का सम हो गया. ओके, समझा है, कैसे समझा, कैसे लिखना है, मार्क्स कैसे मिलते हैं, समझ में आया, एवरीबॉडी अंडरस्टूड. 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल कैसे आता है. ओके, पहला हाफ मार्क्स क्या रहेगा आपका, गिवन के लिए रहेगा, फिर हाफ मार्क्स फॉर्मूले के लिए, 1.5 मार्क्स आपका सॉल्यूशन के लिए रहेगा, और बाकी का हाफ मार्क्स यूनिट के लिए रहेगा. ठीक है, क्लियर. ओके, चलो now let's go to the next question, next topic, that is electrostatic
potential sorry, not equipotential surfaces. Okay, equipotential surfaces. Anyone has a doubt? Anyone has a doubt up till here? Equipotential surface. Okay, now what is equipotential surface? Now we know that potential is given by V equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R. ठीक है? So how will you define an equipotential surface? So you will say the region around a charge along the contour where the potential due to the charge always remains same is called equipotential surface. Okay, later on, पहले ही लिखो, ये लिखो आर्यन, बाद में मैं दिखाता हूँ तुमको, मैं स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा, एक और सम, एक बार ये टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद मैं एक और सम कराता हूँ मैं, ठीक है? डेफिनेशन लिख लिया? No, sir, wait. लिख लो फटाफट लिख लो, देन आई विल एक्सप्लेन। फटाफट डेफिनेशन लिख लो। डन? ओके, ठीक है। नाउ सी व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस बेसिकली। अगर सपोज करो यहाँ पे क्या है, एक चार्ज है, क्या है, लेट्स से ये एक चार्ज है Q, बड़ा Q है, ठीक है। सो इस चार्ज के आसपास क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, है ना? क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है तो the electric field will be going outward like this. Okay, so the अगर मैं एक यहाँ पे सर्कल्स बना दूं, ऐसे सर्कल बना रहा हूं मैं यहाँ पे, जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और पोटेंशियल जहां पे कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों में से कुछ भी कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। या फिर मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन जीरो रहेगा। क्या जीरो रहेगा, वर्क डन। ठीक है, समझा? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी या फिर वर्क डन जीरो रहेगा। ठीक है, सो उस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे यहाँ पे
अगर मैं ये वाले पॉइंट पे हूं, इफ आई एम एट दिस पॉइंट and if I move from this point to this point along this yellow line, if I move from this point to this point, मैं लेबल कर देता हूं कि आपको समझे. लेट्स से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है. Okay, so now if I go from point A to point B, if I go from point A to point B, am I on the same circle? Yes or no? Jaldi bolo. Am I on the Yes. same circle? Yes or no? Yes. So since I'm on the same circle, now this circle is called as contour. इस सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टूर बोलते हैं. इसका नाम क्या है? कॉन्टूर. ओके, मैं देखो यहाँ पे लिखा है कहीं पे कॉन्टूर ना, CO, यहाँ पे देखो कॉन्टूर. क्या बोलते हैं इसको? कॉन्टूर. CONTO. Sir, हाँ so can you explain again that diagram? हाँ, okay, fine, no problem. So see, I have a charge. ठीक है, this is a positive charge, therefore the electric field is going outward. Now what I have done is I have drawn a circles, concentric circles बनाए हैं. Now these circles are called as contours. Okay, so let's say this is the point A, this is point B, this is point C, and this is point D. Okay, so I'm going from point A to point B. Am I on the same circle? Correct. Since I am on the same circle, therefore distance from the point of charge is going to remain same. Distance from the point of charge, like charge point, is going to remain same. अगर distance same रहेगा तो वहाँ पे electric field और potential भी same रहेगा. तो even though I have moved from point A to point B, but the distance always remained constant. Therefore, I will say that point A and point B are on the same potential. या फिर वहाँ पे same electric field है. Since the potential is same, therefore the delta V, change in potential, is going to remain 0. क्यों? क्योंकि VA will be equal to VB. Okay, therefore delta V, which is VA minus VB, is going to be 0. ठीक है, therefore work done, क्योंकि work done क्या होता है? delta V times Q होता है. Delta V will be 0, therefore work done will be 0. So when you are moving in an equipotential surface, at that time the work done is 0. Understood? समझ में आया क्या? Anyone has a doubt? They can ask me. I'll explain once again. Let's explain it once again. Which point? Which point? ऑरेंज इंक में लिखा है ना. हाँ, ऑरेंज इंक में लिखा है ना. ऑरेंज इंक में कौन सा है? VA माइनस VA इक्वल्स टू VB वाला पार्ट. Okay, so see the point A, at point A the potential is VA, at point B potential is VB. Now since it's a circle, therefore the distance from the center to the point A and point B is going to remain same. जब distance same रहेगा मतलब ये R same रहेगा. If the R is same, then the potential will be same, therefore VA will be equal to VB. So अगर मैं A से B move किया, पहले मैं A पे खड़ा था, फिर A से मैं B पे गया, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ? डेल्टा वी कितना हुआ? VA माइनस VB. बट मुझे यहाँ ऑलरेडी पता है VA इज इक्वल टू VB, देयरफॉर VA माइनस VB विल बी 0. वर्क डन क्या होता है? डेल्टा V टाइम्स Q होता है, चेंज इन पोटेंशियल टाइम्स चार्ज. देयरफॉर वर्क डन कितना हो जाएगा? 0. समझ में आया? Yes, sir. Okay. Now let's talk about hello, can you guys hear me? Let's talk Yes, about sir. हाँ, let's talk about energy. हमने like we already know, we know what is the equation for energy, right? What is the equation for energy? Work done वाला equation ही है ना energy के लिए. I mean अगर suppose करो मैंने क्या कहते हैं चार्ज को
ए से सी पे मूव किया और ए से डी पे मूव किया, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, रेडियस अलग अलग रहेगा, क्योंकि पहले एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है ना। अगर मैं ए से डी पे गया तो, या फिर ए से सी पर गया Yes. तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? Change. Change, obviously, since VA is not equal to VC, right? VA is not equal to VC, therefore delta V, which is equals to VA minus VC, will not be equal to 0. Therefore work done, which is nothing but delta V times Q, will not be equal to 0. Okay, understood? ठीक है। Yes. यहाँ पे डेल्टा भी 0 नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि देखो मैं पॉइंट ए से पॉइंट सी पे जा रहा हूँ। Point C is on a different circle, on different contour. Point A is on a different contour. If they would have been on the same contour, that is on the same circle, then the potential would have been 0. But since they are on a different contour, so obviously there will be a change in the potential. Got it? Clear? Anyone has a doubt? Anyone has a doubt? Everyone is clear, ना? ओके, सो हमारा पोटेंशियल का Yes, फॉर्मूला, sir. हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल से हमको वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी ओनली, सो आई कैन से पोटेंशियल एनर्जी which is nothing but work done, potential energy can be written as work done equals to delta V times Q. डेल्टा V क्या है मेरा? डेल्टा V is V1 minus V2. ओके, और बी आई माइनस वी एफ माइनस बी आई करता हूँ मैं, जनरल फॉर्म में लिखता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, नाउ इसको ऐसे ले सकता हूँ, या फिर मैं कैसे ले सकता हूँ इसको? सिंपली वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा वी क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब ये कैसे हो गया? क्योंकि देखो हमको पता है ऑलरेडी VF और VI क्या होता है। VF क्या होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QF अपॉन RF। VI क्या होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI अपॉन RI। ओके, अंडरस्टूड। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है, आप इसके टर्म से भी लिख सकते हो, ये वाले टर्म से भी लिख सकते हो। ये दो टर्म्स, ये दो वेज है which you can, in which you can write the electrostatic potential energy. We have already discussed this when we were doing the derivation. Okay, clear हो गया ये चीज? Does anyone has a doubt? If anyone has a doubt, they can ask me right now. Repeat. Okay, देखो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वर्क डन होता है। वर्क डन क्या होता है? डेल्टा क्यू, डेल्टा वी टाइम्स क्यू होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन। ओके, और इलेक्ट्रिकल वर्क डन डेल्टा वी विच इज चेंज इन पोटेंशियल टाइम्स चार्ज। डेल्टा वी क्या है? वी एफ माइनस वी आई। वी एफ क्या है? मेरा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एफ अपॉन आर एफ। वी आई क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई अपॉन आर आई। ठीक है, अगर वही मैं VF की जगह पे V1 लिखूं और VI की जगह पे V2 लिखूं, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन डायरेक्टली इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। क्लियर? मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ओके, अच्छा चलो, राइट डाउन वन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम लिखो, राइट डाउन वन क्वेश्चन। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, calculate the potential energy for two charges
of 30 microcoulomb each, 30 microcoulomb each, separated by a distance of 30 centimeters. Separated by a distance of 30 centimeters. Okay, I'll repeat once again. Listen carefully, those who haven't written it. Calculate the potential energy for two charges of 30 microcoulomb separated by a distance of 30 centimeter. Clear? सबको क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? चलो सॉल्व करो फटाफट. आंसर आया क्या? आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. ओके. Since they have already said they are separated by a distance of 30 centimeters, that is तुम्हारा 1/r1 minus 1/r2 ही का जो तुम्हारा वैल्यू है वो तुम्हारा 30 सेंटीमीटर है. ओके. क्लियर हो गया? देखो मैं सॉल्व करके दिखाऊं क्या? क्या हमारा प्रॉब्लम क्या? What is given? Q1 equal to Q2 equals to 30 microcoulomb. R equals to 30 सेंटीमीटर. ढूंढना क्या है हमको? पोटेंशियल एनर्जी. फॉर्मूला क्या है हमारा? पोटेंशियल एनर्जी equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R. ओके. सॉल्यूशन देखो. Potential energy equals to that is 9 into 10 to the power 9 into 30 into 30 into 10 to the power minus 12. Can you guys see? I don't think so. Outside. Potential energy equals to 9 into 10 to the power 9 into 30 into 30 into 10 to the power minus 12 upon 30 centimeters, that is 0.3 meters. 0.3. कितना होगा ये? हाँ गाइस, कितना होगा ये आंसर? जल्दी बताओ.
हाँ, yes, does anyone know the answer? If you guys won't answer, मैं सबको क्लास से बाहर निकाल दूंगा अभी के अभी. Yes, साइली, निकिता, मानसी, आदित्य, आस्था, श्रेया. Wait 2 minutes. ओके, हाँ सही आंसर आया क्या? केनिथ, हर्ष, ध्रुवा, अथर्व, नहीं गलत है एशलीन. चेक योर कैलकुलेशंस, चेक योर कैलकुलेशंस. Sir, हाँ, I got 2700 into 10 raised to minus. नहीं गलत है. चेक योर कैलकुलेशन. अरे सामने देखो ना Sir, कितना होता है. 9 9 से 81 ना. sir, हाँ, I got 2700, 2.700, 10 raised to 3. हाँ करेक्ट है. ओके, see what do you get? You get is basically what? 81. Okay, what you get is 81 upon 3, that is you get 27 joules. Okay, you get 27 joules. आप लोग चेक So कर I सकते हैं. got 27,000 into 10 raised to 3 minus 3. That only, not 27,000 into 10 to power minus 3 is what? 27 ना. Yes. Yes, yes. ओके, ठीक है, इजी था ना. Okay, so हाँ, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम फॉर 2 मार्क्स. ठीक है, ये कैसे आते हैं? ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए आते हैं, एकदम सिंपल वाले सम से. ठीक है, क्लियर. 2 मार्क 3 मार्क. और समझ में आया ना? यूनिट लिखना है. इफ यू वोंट राइट द यूनिट, हाफ मार्क्स विल गो. गिवन के लिए हाफ मार्क्स होता है. देन योर क्या कहते हैं, फॉर्मुलेस के लिए हाफ मार्क्स होता है. स्टेप्स के लिए बाकी के मार्क्स होते हैं. और आखिरी का हाफ मार्क्स यूनिट के लिए होता है. तो याद रखो, जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन है उसमें से 1.5 मार्क्स खाली आपका किसके लिए है? स्टेप्स. ठीक है, उसमें से 1 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाता है गिवन और फॉर्मूला लिखने के लिए. ठीक है, याद रहेगा. एनीवन हैज अ डाउट? ओके, so let's go to the next question. Next topic. Okay, let's go to the next topic. That is potential energy of a dipole in an external field. So basically here what we are going to find out is again energy only, but we are going to use a like dipole. ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली टॉर्क के टर्म्स में थोड़ा बात करेंगे. टॉर्क आप लोग को पता है, हमने टॉर्क डिफाइन किया था. तो कैलकुलेशन नहीं समझा? कैलकुलेशन क्यों नहीं समझा? क्या हो गया कैलकुलेशन में? क्या नहीं समझा कैलकुलेशन में? बताओ. 9 देखो, 9 है, 3 है, 3 है, 3 3 जा 9 होता है, 9 9 जा 81. यहाँ पे 81 आ गया. यहाँ पे 10 रेस टू 9 है, यहाँ पे 10 रेस टू -12 है, -3 बचा. ओके, -3 और यहाँ पे 10 10 20 है, 10 टू पावर -1 है, नीचे 10 टू पावर -1 है, दोनों कट जाएंगे. 10 टू पावर 1 मतलब कुछ नहीं बचेगा, तो सीधा नीचे 3 आएगा. डिनोमिनेटर में 3 है और न्यूमरेटर में 81. आप सॉल्व करो, देखो आंसर आएगा आपको. ठीक है, now let's write down the name of the topic. Potential energy
of a dipole, potential energy of a dipole in an external field. In an external field. Okay, potential energy of a dipole in an external field. So यहाँ पे basically हम क्या करने वाले हैं? We are going to say there is a dipole. There is a dipole, okay, which is like plus q and minus q, okay, and they are separated by a distance of 2l from their center, and there is an electric field going on. क्या जा रहा है? There is an electric field going on like this. Okay, there is an electric field going on like this. This is the electric field, E bar. So what it is doing is it is making angle theta over here. Can you guys see? आप लोग को दिख रहा है? आप लोग को दिख रहा है? Okay. So now let's say the force acting over here because of this electric field is basically what? Okay. यहाँ पे क्या रहेगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, मतलब इसके ऊपर चार्ज लगेगा, फोर्स लगेगा, दैट विल बी QE, और यहाँ पे इस तरफ लगेगा चार्ज, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा, वो वाला रिपेल करेगा, ये रहेगा QE. So this will be minus and this will be plus. Okay, this is basically force. So F will be equal to minus Q times E on the negative charge, and F will be plus times QE on the positive charge. Negative charge, and this is positive charge. Clear? Clear हो गया ये चीज? Now we know that. Now what do we know? We know that. Sir, हाँ बोलो. can you repeat this negative charge and positive? Okay, see, this is a dipole, right? Separated by a distance of 2l. So what is happening is there is a force acting on it because of the electric field. कैसे? क्योंकि देखो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है. फोर्स क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है. तो अगर तुम दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है? F इज इक्वल्स टू Q टाइम्स E होता है ना. ओके. Yeah. Now, since this is the electric field going in this direction, that means I will assume that there is a positive charge over here. There is a positive charge over here from where the electric field is going towards in this direction. Okay, मतलब इस तरफ जा रहा है electric field. Okay, so now so this negative charge will be attracted towards the opposite direction of the electric field, and the positive charge will be repelled. Therefore, the direction of the force will be for the positive charge, it will be away. For the negative charge, it will be towards. ठीक है, इसलिए मैंने एरो ऐसा बनाया है येलो कलर का. समझ में आया? Yeah, sir, got it. समझ में आ गया ना? ठीक है. So now we know that what we know. We know that हाँ, it can be negative. नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड. डायरेक्शन से पता चलता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है. ठीक है. we know that what we know that tau is equal to tau मतलब torque is equal to P bar cross E bar. Tau is equals to P bar cross E bar, where P is my dipole moment and E is the electric field. तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? which is equals to PE sin theta.
ओके, आई कैन राइट इट एज PE sin थीटा। नाउ अभी एक नया फॉर्मूला है, आप देख लो, आपको लाइक अगर आपको पहली बार नहीं पता होगा, वर्क डन वी कैन राइट वर्क एक्सटर्नल वर्क डन। नाउ वी विल राइट हियर because of the external electric field, the torque will act on the dipole. Okay, therefore external EXT, therefore external work done due to the torque is given by, okay, work done which is external EXT will be equal to integral tau d थीटा। समझ में आया? समझ में आया? ये एक फॉर्मूला है वर्क डन निकालने का, ये भी एक फॉर्मूला है वर्क डन निकालने का। ठीक है, मतलब मैंने ये बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मतलब जो डाइपोल है ये कितने एंगल से मूव हुआ, ठीक है, कितने एंगल से मूव हुआ। समझ में आया क्या? टर्क नहीं है, टॉर्क है वो समीर, TORQUE, ओके, TORQUE, टॉर्क, ओके, टर्क नहीं है। क्लियर? अच्छा, तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे, let the dipole move from initial angle θ1 to final angle θ2 in the presence of external external field। क्या आएगा इसका आंसर फिर? तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन V एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल θ1 θ2। अब टाउ क्या हो जाएगा? टाउ विल बी बेसिकली PE sin थीटा d थीटा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, P और E नहीं चेंज हो रहा है, खाली क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, PE इंटीग्रल θ1 θ2 sin थीटा d थीटा। चलो अब मुझे कोई बता सकता है sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ sin थीटा? कौन बताएगा? हाँ, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ sin थीटा? यस सही, या फिर साइली लाया, इकरा, Sir, minus cos x plus c. माइनस, Cos x. करेक्ट, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन एक्स का कॉस माइनस कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा है तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, आपने यहाँ तक, आप सब लोगों ने यहाँ तक लिख लिया है ना? आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड देन। अगर यहाँ तक सबका हो चुका है तो मुझे बताओ, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड।
Everyone is ready? Written up till here? See, if you guys won't reply, I'll simply end the lecture. Yes, sir. हाँ, reply नहीं करना है. See, you guys are not doing a favor on me. Actually, I am doing a favor on you, taking online lectures. So if you are not going to reply, so I'll just simply stop the lecture. I don't care. You should understand. Okay. So now, so as we know that that integral will be basically what? That integral of the external work done का जो integral होगा उसका क्या हो जाएगा? External work done will be equals to PE. क्या होगा ये? Minus cos theta. Now we are going to put the limit theta 1 and theta 2. Where theta 1 and theta 2 are the upper limits and lower limits. याद है ना, हमने देखा था लास्ट टाइम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट देखा था ना, याद है? अपर लिमिट लोअर लिमिट हम लोग क्या करते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट में? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं हम लोग, है ना? फाइनल माइनस इनिशियल. तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा P टाइम्स E माइनस cos theta 2 minus cos theta 1. Okay, so that will be equal to PE minus cos theta 2 minus plus cos theta 1. So simply ये हो जाएगा PE cos theta 1 minus cos theta 2. ठीक है, तो ये मेरा external work done का फॉर्मूला है. So that means when you put a dipole in the presence of a in the presence of an electric field, so the work done is given by this formula. Now this is a very general formula. Okay, this is a very general formula. Okay. Now we have a case over here. Let's like if the initial angle is what 0, 1 जो भी रहेगा इसके हिसाब से. So we have two cases over here. Case 1. Okay, case 1. So the case 1 over here will be case 1 if theta 1 is equal to 0. अगर theta 1 मेरा 0 है तब आंसर क्या होगा? तब मेरा एक्सटर्नल वर्क डन विल बी इक्वल टू PE. क्योंकि अब देखो cos 0 कितना होता है? 1 होता है. सो दिस विल बिकम 1 माइनस cos थीटा. ठीक है. अब केस 2 क्या है? केस 2 इफ थीटा 1 is equal to pi by 2 and we know that cos pi by 2 कितना होता है? 0 होता है. सो यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन क्या हो जाएगा? that will be equal to minus PE cos theta 2. Clear? Which is nothing but P bar minus P bar dot E bar, because ये कैसा दिख रहा है? AB cos theta दिख रहा है ना, ये A है, ये B है ना? This is looking like an AB cos theta, right? This is looking like what? AB cos theta, which is A bar dot B bar. Okay, समझ में आया? तो देखो हम यहाँ से क्या प्रूव कर सकते हैं? यहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं, अदर देन दिस फॉर्मूला, अदर देन दिस वी कैन प्रूव दैट वर्क डन इज अ व्हिच क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी. डॉट प्रोडक्ट आया ना, डॉट प्रोडक्ट. ओके, इट्स अ वेक्टर प्रोडक्ट, बट कौन सा? स्केलर वाला प्रोडक्ट है ये. ठीक है, वेक्टर वाला क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है. सो वर्क डन यू कैन से इट्स स्केलर क्वांटिटी, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, समझ में आया? Anyone has any doubt? Up till here? No, sir. Okay, chalo. Write down the question. Write down one question.
Write down one question. An electric dipole consists of an electric dipole consists of two opposite charges. An electric dipole consists of two opposite charges, each of magnitude 1 microcoulomb, An electric dipole consists of two opposite charges, each of magnitude 1 microcoulomb, separated by 2 centimeter. The dipole is placed in an external electric field. The dipole is placed in an external electric field of 10 to the 5 Newton per coulomb. 10 to the 5 Newton per coulomb. 10 to the 5 Newton per coulomb. लिख लिया? Yes. ओके, नाउ आपको ढूंढना क्या है? फाइंड आउट द मैक्सिमम टॉर्क exerted by the dipole. Find out the maximum torque exerted by the dipole. ये पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर सेकंड पार्ट है फाइंड आउट द वर्क डन when the dipole is moved through 180 degree from the position of 0 degree. Move through 180 degree from the position of 0 degree. Okay, क्लियर हो गया? ओके, सो आपको क्या ढूंढना है? आपको पहले देखो दिया क्या है, वो लोगों ने चार्ज की वैल्यूज दी हैं. ठीक है, चार्ज की वैल्यूज कितनी दी है? पहले आप गिवन देखोगे. व्हाट इज गिवन? Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू कितना है? 1 माइक्रोकूलम चार्ज है मेरा. ठीक है, डिस्टेंस कितना है? दैट इज 2L. 2L कितना बोला है? 2 सेंटीमीटर है. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोला है? 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम. ढूंढना क्या है हमको? मैक्सिमम टॉर्क टी मैक्स ढूंढना है. और क्या ढूंढना है हमको? वर्क डन ढूंढना है. कब? जब मैं 180 डिग्री घुमा रहा हूं. ठीक है, कहां से कहां? 0 से 180 डिग्री ट्विस्ट कर रहा हूं. तो मुझे ये निकालना है. समझ में आया क्या? ओके, ओके, सो हाउ विल यू सॉल्व दिस? तो पहले तो आपको देखो टॉर्क निकालना है. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इक्वल्स टू
PE sin थीटा होता है, करेक्ट। अच्छा, मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम कब होगा? जब साइन का वैल्यू कितना होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, कोई बता सकता है मुझे? व्हेन इज द वैल्यू ऑफ द साइन इज मैक्सिमम? 90 degree. Correct, 90 degree. So that means when theta is equal to pi by 2, at that time torque is maximum, tau is equal to T max, मतलब maximum हो जाता है. So I will write T max equals to PE sin pi by 2. अब P क्या होगा? P का फॉर्मूला क्या होता है? P is 2Q times 2L, राइट। तो यहाँ पे टाउ क्या हो जाएगा? Q 2L E, और ये साइन तो ये तो 1 हो जाएगा, तो मैं 1 लिख नहीं रहा हूँ। तो Q की वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रोकूलम, दैट इज 1 × 10⁻⁻6। 2L कितना है? 2L का वैल्यू कितना है? 2 सेंटीमीटर है, दैट इज इंटू 2 × 10⁻2 मीटर्स, ओके। इंटू E कितना है? 10⁵, तो ये कितना होगा? -6 -2 -8 -8 + 5 -3, तो 2 × 10⁻³ क्या आएगा? इसका यूनिट क्या आएगा? न्यूटन मीटर। सबको देखो, सबको यही आंसर आया क्या? Yes, sir. यही आंसर आया, न्यूटन मीटर, ओके, ठीक है। चलो अब देखो, वर्क डन, हमको मैक्सिमम वर्क, ये वर्क डन निकालना है ना। तो वर्क डन का देखो हमारा फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला है हमारा वर्क डन का, है ना। ये वाला जनरल फॉर्मूला है ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है? एक्सटर्नल वर्क डन VEXT क्या होता है? PE cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। अब यहाँ उन्होंने क्या बोला है? हमने कितना एंगल उसको घुमाया? 180 डिग्री एंगल। कहाँ से घुमाया? इनिशियल पोजीशन क्या था? 0। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा PE क्या है मेरा? Q2L। इनिशियल पोजीशन क्या है मेरा? cos 0। कितना घुमाया है? 180 डिग्री, तो θ2 हो जाएगा 180 डिग्री, ओके। तो क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻6 इंटू 2 × 10⁻⁻2 इंटू 10⁵ cos 0 1 होता है, cos 180 -1 होता है, दैट इज 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। तो ये आंसर कितना हो गया? इसका वैल्यू हमको पता है ऑलरेडी कितना होता है, 2 × 10⁻³ होता है, इंटू 1 + 1 2 हो गया, तो दैट इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻³ जूल। अंडरस्टूड? Yes, sir. किसी को डाउट है? और किसी को डाउट है क्या? देखो इसके अंदर, डज एनीवन वांट्स अ रिपीटेशन? नाउ दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 3 मार्क्स, इवन दिस क्वेश्चन विल कम फॉर 3 मार्क्स, बड़े थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ओके। दिस कैन आल्सो कम, समटाइम्स दे कैन आल्सो आस्क फॉर 4 मार्क्स आल्सो, कभी कभी इसको 4 मार्क्स के लिए भी ये लोग पूछ लेंगे, ठीक है। इट डिपेंड्स, बट यूजुअली 3 मार्क्स के लिए ही आता है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, आपको टॉर्क निकालना है और वर्क डन निकालना है, ओके। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट समटाइम्स दे आस्क फॉर 4 मार्क्स आल्सो, ठीक है, समटाइम्स। ओके, समझ में आया क्या? डज एनीवन हैज अ डाउट? Okay, now I'll be dictating few things, you have to write down, okay. That is our next topic, like what are conductors, what is insulators, okay, and what is free charges and what is bound charges, okay. So write down the topic name: conductor, insulator, free charges and bound charges. The next topic, write down everyone, write down the name of the topic: conductors, Sir, repeat slowly. conductors, insulators, conductors, insulators,
free charge and bound charge. Free charge and bound charge. Free charge and bound charge. Okay. Okay. Now, write down the first one. Electrostatic properties for conductors. Electrostatic properties of conductors. लिखा electrostatic properties of conductor. Ready? Everyone is ready? Okay, chalo. Write down the first point. In the interior of the conductor, the net electrostatic field is 0. In the interior of the conductor, electric field is 0. Okay, the first property of the conductor is the interior of a conductor. In the interior of the conductor, the net electric field is 0. Don't forget to write net. अगर खाली आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 लिखा तो गलत हो जाएगा. खाली इलेक्ट्रिक फील्ड मत लिखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है. ठीक है. ओके. In the interior of the conductor, the net electric field is 0. Next point. The potential inside the conductor is constant. The potential inside the conductor is constant till the surface. Till the surface. याद रखो. The potential inside the conductor is constant till the surface. Okay. The potential inside the conductor is constant till the surface. Okay. Then next, in static situation, the interior of the conductor can have no charge. In static situation, the interior of the conductor have no charge. इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे पास कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर चार्ज रहेगा, सरफेस के अंदर चार्ज नहीं रहेगा. मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज करो तुम्हारे पास क्या है, एक कंडक्टर है ऐसा. ओके. सिलेंडर लाइक स्फेरिकल. तो जब मैं चार्ज डालूंगा तो चार्ज सरफेस के ऊपर आएगा, अंदर नहीं आएगा. समझ में आया? ठीक है. तो इन स्टैटिक सिचुएशन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर हैज नो चार्ज. समझ में आया ये पॉइंट सबको? तो स्टैटिक सिचुएशन मतलब तुम चार्ज को बार बार चेंज नहीं कर रहे हो. तुमने एक बार 10 कूलम चार्ज डाल दिया, एक बार 1 कूलम चार्ज डाल दिया, तो तुम उस 1 का 1 ही रख रहे हो, बार बार चेंज नहीं कर रहे हो. दैट इज अ सिचुएशन कॉल्ड एज स्टैटिक सिचुएशन. इट्स अ स्टेशनरी सिचुएशन. सो इन दैट केस इनसाइड द कंडक्टर द चार्ज इज 0. आउटसाइड सरफेस के ऊपर चार्ज रहता है. क्लियर? ठीक है. देन इलेक्ट्रिक फील्ड is normal to the surface of the conductor. Electric field is always normal to the surface of the conductor. Repeat. Electric field is normal to the surface of the conductor outside. Okay. Electric field outside is normal to the surface of the conductor. ठीक है. लिख लिया? Sir, no. From that outside the surface, repeat again.
outside the surface of the conductor. Electric field is normal from outside the surface of the conductor. Okay. Now, last point. Surface charge density of a conductor. Surface charge density of a conductor could be different at different point. Surface charge density of a conductor could be different at different point because it depends upon the shape and size of the conductor. Because it depends upon the shape and size of the conductor. Clear? No, sir. At different. At different points, the surface charge density on of a conductor is different at different points because it depends upon the shape of the conductor, shape and size of the conductor. जैसे सपोज करो मैंने एक स्पेरिकल बॉल लिया, तो स्पेरिकल बॉल क्या है, एक स्फीयर जो है वो तो हर एक जगह से सेम दिखता है, सिमेट्रिक होता है ना। स्फीयर लूंगा तो वो सिमेट्रिक रहेगा हर एक जगह से। बट मैंने अगर एक कोन ले लिया, कोन क्या है, कोन सिमेट्रिक कैसा है, वर्टिकली सिमेट्रिक है, ठीक है। Surface charge density of a conductor could be different at different points because it depends upon the shape and size of the conductor. Okay, तो जैसे इन केस ऑफ स्फीयर क्या होता है, स्फीयर हर जगह से सिमेट्रिक होता है, आप उसको कैसे भी कट करो, बीच डायमेट्रिकली कैसे भी कट करो वो हमेशा सेम रहेगा। बट अगर तुम क्यूब को सेम करोगे, ये क्यूब बोल रहा हूँ, तुम्हारा क्या नाम है, क्या बोला मैंने, कोन को अगर तुम वर्टिकली कट करोगे तो सिमेट्रिक है, बीच में से ऐसे कट करोगे जैसे मैंने कट किया तो सिमेट्रिक है। बट अगर तुमने ऐसे कट किया तो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ऊपर का पोर्शन नीचे का पोर्शन अलग अलग है, ठीक है। तो इसकी वजह से शेप और साइज सेम नहीं है हॉरिजॉन्टली, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सरफेस ज्यादा है, यहाँ पे सरफेस कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम रहेगी, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगी। समझ में आया? ओके, समझ में आया क्या? So that is why it will depend upon the shape and size of the conductor. Am I clear? Yes, sir. Okay. Now, अच्छा, अभी देखो क्या होता है, जो हमारे मोबाइल में जो सिग्नल आता है ना, like we get the network, that is basically nothing but an electrostatic wave और इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉरी नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबको पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर था, याद है? ओके, नो, पता है कि नहीं पता है? यस नो कुछ तो बोलो चैट में। Yes. ओके, सो दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट? Yes. अच्छा, नाउ इफ यू रीड द थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या बोलता है। फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर होता ही नहीं है। इनसाइड द कंडक्टर, अगर कोई मेरा कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं, क्योंकि वो जीरो हो जाता है। और स्टैटिक कंडीशन में मतलब कंडक्टर के अंदर चार्जेस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर तुमने क्या किया, अपना मोबाइल किसी कंटेनर के अंदर रखा, कंटेनर ये क्या है, कंडक्टर है, अगर तुमने अपना मोबाइल किसी कंटेनर के अंदर रखा, सो व्हाट विल यू सी इज द मोबाइल विल लूज इट्स सिग्नल, मोबाइल का सिग्नल चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल अब तुमने कंटेनर के अंदर रखा, तो मतलब तुमने क्या किया, जैसे सपोज करो ये कंटेनर है, ये तुम्हारा मोबाइल है, तुमने इसके अंदर अपना मोबाइल रख दिया, तो ऑब्वियसली अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आने की कोशिश करेगी। अब तुम नाउ थिंक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आने का कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर तो जीरो होती है, तो अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही नहीं सकती है। जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी तो फोन को सिग्नल मिलेगा क्या?
नहीं मिलेगा, और जब फोन को सिग्नल नहीं मिलेगा तो फोन को नेटवर्क आएगा क्या? नहीं आएगा। अंडरस्टूड? सो नाउ दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। Sir, repeat once. Okay. Now, if you have a conductor in which you put any device, जैसे मैंने यहाँ मोबाइल रखा, तुम्हारे पास में एक कंडक्टर था, ठीक है, तुमने उसके अंदर क्या रखा? डिवाइस रखा। ये डिवाइस तुम्हारा मोबाइल है। मोबाइल क्या करता है? मोबाइल को नेटवर्क कब मिलता है? जब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिसीव होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिसीव होते हैं, वो हमारे माइक्रोवेव्स होते हैं। ठीक है, अब तुमने क्या किया? अगर मोबाइल को कंडक्टर के अंदर रख दिया तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमको पता है कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, क्योंकि हमारा फर्स्ट पॉइंट वही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो अंदर चार्जेस भी प्रोड्यूस नहीं होंगे, और जब चार्जेस ही नहीं प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा? मोबाइल को सिग्नल ही नहीं मिलेगा, राइट? क्योंकि मोबाइल को सिग्नल कब मिलता है? जब उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं। तो जब मोबाइल को सिग्नल नहीं मिलेगा तो मोबाइल का नेटवर्क चला जाएगा। ठीक है, तो तुम अगर अपने मोबाइल को किसी टिफिन बॉक्स के अंदर रखोगे तो मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है। क्यों चला जाता है? बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, क्लोज्ड होना चाहिए कंडक्टर। ऐसा नहीं तुमने मोबाइल को टिफिन के या किसी डब्बे के अंदर रखा हो, तुमने इसका ढक्कन नहीं बंद किया। अगर तुमने ढक्कन बंद किया मतलब वो पूरा का पूरा पैक हो गया। जब पूरा का पूरा पैक होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। दैट इज व्हाई इट सेज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो, है ना? इसलिए मैं बता स्टेटमेंट में नेट होना चाहिए। अंडरस्टूड? क्योंकि हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए, हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके जीरो होगा। अगर तुमने कहीं से भी खोल के रखा है तो क्या होगा? वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाएगा, मोबाइल को नेटवर्क मिलेगा। ओके, Yeah, sir, I got it. गॉट इट? ठीक है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा तो आपने कभी कभी एक्सपीरियंस किया होगा व्हेन यू गो ट्रैवलिंग इनसाइड द एलिवेटर, ये आपका क्या बोलते हैं, लिफ्ट, जो मेटल का बना होता है। ठीक है, लकड़ी वाला हो, हाँ मेटल का यूजुअली, हाँ जो मेटल का बना होता है, तो उसके अंदर आप जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाते हो वैसे मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है। आपने एक्सपीरियंस किया जरा? क्यों? क्योंकि देखो वो पूरा का पूरा मेटल का सब तरफ से पैक होता है ना, कहीं से ऐसा है कि हवा या कुछ आने के लिए कुछ है क्या? नहीं है। तो क्या हो गया? एक क्लोज्ड कंडक्टर हो गया ना। ओके, ठीक है। Yeah. Okay, so with that note, I'll be stopping today. So and do start reading because Sunday को आप लोग का टेस्ट रहेगा इसका। तो क्या करना है अब? कल जितना होगा, ठीक है, आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू इन एडवांस। संडे को आपका फिजिक्स का टेस्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो जितना मैं पढ़ाऊंगा कल तक, कल के लेक्चर तक, वहां तक का आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, कल तक मैं जहां तक पढ़ाऊंगा वहां तक आपका टेस्ट रहेगा। तो कल हम लोग यूजुअली वी विल फिनिश टिल क्या कहते हैं, पेज नंबर 203 तक हमारा हो जाएगा, टिल पेज नंबर Sir, 203। हाँ बोलो। sir, means like all theory part and it will be mixed or एवरीथिंग विल बी देयर, एवरीथिंग विल बी देयर, on नथिंग विल Sunday, बी। right? हाँ On हाँ, Sunday. ऑन संडे देयर विल बी अ टेस्ट। ठीक है, तो जहां तक मैं पढ़ाऊंगा वहां तक का टेस्ट रहेगा। तो आई बी यूजुअली आई बी फिनिशिंग टिल पेज नंबर 203। आज हमारा हो चुका है, क्या कहते हैं, पेज नंबर 200 तक हो चुका है। 200 मतलब से स्टार्ट करूंगा, 4 पेज है, 1.5 घंटे में हो जाएगा। थियोरी पार्टी है तो उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, लिखना ही है हमको। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में विल फिनिश टिल पेज नंबर 203, वहां तक आपका टेस्ट रहेगा संडे को। ओके फाइन, ओनली ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, और कौन सा, और कोई टॉपिक मैंने स्टार्ट किया ही नहीं है ना यश, खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना। Sir, because reference books are not yet given, so that's तो why I was. रेफरेंस बुक क्यों? तुम्हारे टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है और जो नोट्स है वो यूज करना है, और क्या यूज, और कुछ नहीं करना है। Okay. Okay, sir. ठीक है, जो नोट्स है वो प्लस नोट्स में देखो आप लोगों को क्या आना चाहिए, डेरिवेशंस आने चाहिए। जो डेरिवेशंस हैं, एक दो जितने भी मेरे डेरिवेशंस कराए हैं वो आने चाहिए। प्लस देखो, इसलिए मैंने आपको आज कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए, तो न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए। ठीक है, बस थियोरी क्वेश्चन, जो थियोरी वाला पार्ट है वहां से थियोरी आएगा। जैसे आज हमने ये 4 पॉइंट्स लिखे, तो थियोरी आ सकता है, ऐसे ही डेरिवेशन आ सकता है, प्लस न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, न्यूमेरिकल्स के मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं आप लोग को।
दिखाया है ना, देखो यहाँ पे मैंने कराया है ना कैसे हाफ मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। Yes, sir. हाँ तो बस ऐसे ही करना है आपको, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो आप मैम को बोलिए, मैम आपको भेज देंगी कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ओके, आप मैम को बोलिए, मैम नोट्स सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे इसका, ठीक है। ओके चलो, सो आई एम स्टॉपिंग हियर। एनीवन एल्स हैज एनी डाउट दे कैन आस्क मी। ओके so since nobody is saying, so I'll stop here, ठीक है। चलो बाय गाइस।